Good morning, friends. Today we are going to discuss the topic which is called as monoclonal antibody and their production. It's a part of our playlist of immunology. So let's start with it. First of all, let's learn what do you mean by monoclonal antibodies. To learn what do you mean by monoclonal antibody, first of all we should know what do you mean by antibodies. Antibodies are nothing but a protein or a glycoprotein which is naturally generated by one cell of immune system which is called as B cell, and these antibodies are produced against antigen. In nature it is observed the naturally generated antibodies may be polyclonal or it can be monoclonal. Polyclonal means it can binds to multiple site on the same antigen. While these monoclonal antibodies are not naturally generated, they are laboratory made proteins, and these are specifically designed by genetic engineers or immunological persons that can bind to specific antigen, and they will eliminate those antigen, and ultimately they will eliminate the pathogens. So as you can see, these are the monoclonal antibody in the image. It will bind either to this specific one of the specific sites, and it has ability to eliminate the pathogens. Their production is very important as we are making this antibodies in laboratory, so it is artificially generated. There are several steps of antibody production, monoclonal antibody production. The first step is, as we know that these antibodies are very specific for the specific antigen, so first we need to select the desired antigen from the pathogen. For example, if you are designing monoclonal antibodies for COVID-19 antigen, COVID-19 virus, so first of all you will find particular antigen from that virus, and then you will proceed to design antibodies for those antigens. Next, this antigen which is selected is inserted into particular animal. Then after inoculation, the third step is to generate hybridoma. We will see each and every steps. The generation of hybridoma, we will select specific hybridoma cell, will clone them, and we will produce these monoclonal antibodies in the multiple amount. Then once it is produced, we will go for the purification, tasting, and packaging. Let's have a quick revision in Hindi what we have done, what we have discussed right now. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक तरीके के प्रोटीन है, इंस्टेड हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन है जो लेबोरेटरी में डिजाइन किए गए हुए हैं, एंड लेबोरेटरी में डिजाइन करने के बाद वो पर्टिकुलर एंटीजन के ऊपर एक्ट करते हैं. नेचुरली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो एक सेल जनरेट करता है जिस सेल को हम कहते हैं बी सेल, और हमेशा एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जनरेट होते हैं. इट कैन बी पॉलीक्लोनल, मींस एक ही एंटीजन की अलग अलग साइट्स के ऊपर वो बाइंड हो सकते हैं. कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं वो आर्टिफिशियली डिजाइंड है, दैट इज इन द लेबोरेटरी वो डिजाइन होते हैं, और वो किसी भी एंटीजन के स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर किसी एक ही बाइंडिंग साइट के ऊपर बाइंड होके इस पर्टिकुलर पैथोजेंस को जिसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट करने की कैपेसिटी रखता है. अभी हम इसको आर्टिफिशियली डिजाइन कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके मल्टीपल स्टेप्स होंगे. सबसे पहला स्टेप है
हमें उस एंटीजन को फाइंड आउट करना कि जो पर्टिकुलर पैथोजन में प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी डिजाइन करनी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, उस एंटीजन को एनिमल के अंदर इनोकुलेट किया जाता है, उसके अंदर नेचुरली वो एंटीबॉडीज जनरेट होंगे, वो जनरेट हुए तो उसके बाद हाइब्रिडोमा जनरेट किया जाता है। हाइब्रिडोमा क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Then there will be screening and selection, specific hybridoma सेल को सिलेक्ट किया जाता है। Then क्लोनिंग करी जाती है, क्लोनिंग करने के बाद वो ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर उसका प्योरिफिकेशन, पैकिंग एंड टेस्टिंग की जाती है। तो ये जो है कुछ स्टेप्स है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के। लेट्स सी इट फर्स्ट। एज आई टोल्ड यू, वी विल सिलेक्ट द स्पेसिफिक एंटीजन. The antigen is inserted inside the animal. So in this animal, specific adaptive immune response will be observed. Initially T helper cell will be generated. This T helper cell will going to activate B cell, and this B cell is going to produce the antibodies. These antibodies are against the inserted antigen. सबसे पहला स्टेप है किसी भी एनिमल के अंदर एंटीजन को इंसर्ट करना, उससे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेंगे, फिर वो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, एंटीबॉडी जनरेट होगा और ये एंटीबॉडी अभी यूज होगा। अभी जो बी सेल जनरेट हुए थे इनसाइड दिस एनिमल, उसको स्प्लिन में से, हमें पता है कि एक सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन होता है स्प्लिन, उसमें से प्लाज्मा सेल को बाहर निकाला जाता है। प्लाज्मा सेल कौन से? प्लाज्मा बी सेल। ये बी सेल कौन से है? जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं अगेंस्ट दिस इंसर्टेड एंटीजन। नाउ हमें पता है कि किसी भी सेल अगर वो सेल साइकिल के कंट्रोल में है, सो वो जो है अप टू फ्यू लाइफ साइकिल्स जो है वो ग्रो हो सकता है, उसके बाद वो ग्रो नहीं हो सकता है। हमारा एम है इसको प्रोड्यूस करवाना फॉर द मैनी जनरेशन। सो इन दिस केस दिस प्लाज्मा सेल इज फ्यूज्ड विद द ट्यूमर सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा। यहाँ पे ये जो बी सेल हमने माइस में से आइसोलेट करे, प्लाज्मा बी सेल, उसको माइलोमा सेल के साथ इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे ग्रीन कलर आपको बी सेल का दिख रहा है एंड पर्पल कलर आपको माइलोमा सेल का दिख रहा है। उन दोनों को इंसर्ट करके यहाँ पे हाइब्रिडोमा क्रिएट होता है। हाइब्रिडोमा मीन्स यू आर क्रिएटिंग हाइब्रिड बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। अभी ये जो बी सेल है वो क्या प्रोवाइड करेगा? कैरेक्टर, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द पर्टिकुलर एंटीजन। एंड व्हाट डू दिस माइलोमा सेल विल प्रोवाइड? हमें पता है कि कैंसरस सेल जो होते हैं वो किसी भी सेल सिग्नल के कंट्रोल में नहीं होते हैं और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? दे बिकम इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स वो मल्टीप्लाई होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। ये कैरेक्टर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो इफ यू क्रिएट प्रॉपर हाइब्रिडोमा एंड उस सेल लाइन को आप सिलेक्ट करते हो प्रॉपरली, तो ये जो अभी ब्लू कलर के नए सेल बन चुके हैं उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी तो है, साथ साथ में वो इमॉर्टल हो चुके हैं। मतलब जब तक आप उसको प्रॉपर कल्चरल मीडियम प्रोवाइड करते रहोगे तब तक ये वाले सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते रहेंगे। सो यू विल क्रिएट अ प्रॉपर पॉजिटिव क्लोन कि जो एंटीबॉडी ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करते रहेंगे एंड दिस एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड। once this antibody will be produced, इस एंटीबॉडीज को नेक्स्ट स्टेप इज प्योरिफिकेशन। इस सेल से बाहर निकाला जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा और उसको वापस से टेस्ट किया जाएगा whether it is active or not. So this is a concept. You just need to insert antibodies inside the animal, antigen inside the animal,
This animal will generate antibody. Those particular plasma B cell are isolated. They are fused with the tumorous cell, and the generated cell is called as hybridoma cell. This hybridoma cell will become immortal. It will produce this specific kind of monoclonal antibody, which is purified, tasted, and then packed. Right? This is about monoclonal antibodies. होपफुली आपको समझ में आया होगा. इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं. कैंसर रिसर्च में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज कैंसर को ट्रीट करने में यूज होता है. काफी कोविड जैसे डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी यूज होता है. तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो. इफ यू understand this video, please like, share